नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष आज विशेष है शक्तिकांता दास का संबोधन। शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, वो जाने जाते हैं सरप्राइजेस देने के लिए, लेकिन आज जब ये खबर आई कि करीब 2 बजे वो मीडिया को और देश को संबोधित करेंगे, तो बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों को और आरबीआई के रिपोर्टर्स को इस बात की भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है। और हुआ वो जिसके बारे में बहुत लोगों को डर था कि आरबीआई अपने रेट बढ़ा देगी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अपनी मीटिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग करी है। जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए एमपीसी की जो मीटिंग होती है वो अक्सर तय समय पर होती है, पर इस बार इमरजेंसी मीटिंग हुई। इमरजेंसी मीटिंग में क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे और साथ में एसएलआर भी बढ़ेगा, यानी कि जिन दामों पर बैंक जो हैं वो उधार लेती हैं रिजर्व बैंक से, वो बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि अगर ये सब बढ़ा है उससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शक्तिकांता दास की बाइट सुन लेते हैं। The Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. In keeping with the stance of withdrawal of accommodation and in line with the earlier announcement of gradual withdrawal of liquidity over a multi-year time frame, it has been decided to increase the cash reserve ratio CRR by 50 basis points, that is 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities, that is NDTL, effective from the fortnight beginning 21st May 2022. The withdrawal of liquidity through this increase in the CRR would be of the order of rupees 87,000 crore. Looking ahead, food inflation pressures are likely to continue. Food price indices of the Food and Agriculture Organization, that is FAO, and the World Bank touched historical highs in March and remain elevated. Spillovers from global wheat shortages are impacting domestic prices, even though domestic supply remains comfortable. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. चलिए, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार निरंजन हीरानंदानी, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उनका क्या कहना है, क्योंकि आमतौर पर जो 2 बड़ी लोन की वस्तुएं हैं, गाड़ियां और घर, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले निरंजन हीरानंदानी की बात सुन लेते हैं और बाद में फिर चर्चा करेंगे अपने गेस्ट के साथ। The intervention of the Reserve Bank of India about increasing the repo rate and the reverse repo rate has been expected in the sense of the continuing war which is taking place between Russia and Ukraine. The consequence of it has been the increased price of oil above $100 and also the negative effect of inflation in the country, which has really increased the final prices in terms of the inflation which has taken place. All in all, we are able to see now that the intervention of the Reserve Bank is to prevent any further inflationary tendency in the economy, and this, I believe, is going to be short-lived. The reason simple is that till this exigency of war continues and the oil prices continue to be high, the inflation is difficult to be tamed. Hence, it is my expectation that once the Russia-Ukraine war is over, which I hope it gets done quickly, we will see a reversal of these rates and
stoppage of any inflationary tendency in the economy. The increase in the home loan rates will certainly happen as a consequence of this. However, home loans are taken for a long period of time, over 15 to 20 years. The home loan rates are fluctuating, and this will keep on increasing or reducing. It is my expectation that up to 100 basis points increase in the interest rates, home loans or the buying is not going to get affected. But if the overall rates do go beyond that, then definitely there would be some effect of it in the short run. However, overall demand will continue, and as the interest rates again come down to normal, we should see home buying spring again. चलिए अब चलते हैं अपने गेस्ट के पास, प्रोफेसर विवेक सिंह जो कि अर्थशास्त्री हैं और विंकेश गुलाटी जो कि प्रेसिडेंट है फाडा के। आसान भाषा में शुरुआत से समझाने के लिए, CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कि कैश का वो हिस्सा जो कि किसी भी बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है और ना उसको वो इंटरेस्ट कमा सकता है ना उसको लेंडिंग में दे सकता है, उससे लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि जितना पैसा बैंकों के पास होता है बाहर देने के लिए वो कम हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रेपो रेट मतलब कि ये वो रेट है जिससे बैंक RBI से उधार लेते हैं। विवेक सर, सबसे पहले आपसे के पास आता हूँ, CRR या रेपो रेट किसका ज़्यादा असर देखते हैं आप इस महंगाई को कम करने में, या जो पूरी लोन ग्रोथ है, जो लोन रेट की वृद्धि है उसमें? देखिए, असर तो दोनों का होता है, लेकिन हमको बुनियाद समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के तारीख में देश में यही है कि हम कैसे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करें। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और जिस तरीके से दिन प्रतिदिन लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, यह एक बहुत चिंता का सबब है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी केवल एक रास्ता नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक ही हथियार है जिसका वह इस्तेमाल कर सकती है, और वह चेंजेस टू द मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए और सबसे पहले समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करने से, CRR या फिर जो है और भी चीजें हैं उसको चेंज करने से होगा। तो रही बात, असर तो CRR का भी पड़ता है और रेपो का भी पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जहां तक जो चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है, उसके पीछे केवल एक फैक्टर नहीं है, केवल डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा कंजम्पशन लोगों का बढ़ गया, उसकी वजह से ही एक फैक्टर नहीं है। एक फैक्टर और भी है जो कि सप्लाई साइड डिसरप्शन। हम सबको पता है कि कोविड-19 के आने के बाद, पैंडेमिक सिचुएशन के बाद लगातार जो है सप्लाई साइड डिसरप्ट हुआ और उसका असर बढ़ा और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। एक तो अभी हम बात कर रहे थे, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुए हैं, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, क्योंकि ज्यादा क्रूड ऑयल, एक बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है क्रूड ऑयल का रशिया भी सप्लाई करता है पूरी दुनिया को। अगर वहां पे वॉर हुआ तो उसका असर क्रूड ऑयल पे पड़ा है। क्रूड ऑयल पे असर पड़ने के बाद जो पेट्रोल डीजल वगैरह कीमतें बढ़ गई है और इसका असर कहीं ना कहीं जो है महंगाई पे पड़ता है। तो देखिए कि यहाँ पे कंजम्पशन के लिए एक तो फैक्टर है, डिमांड तो एक फैक्टर है, इसके साथ साथ सप्लाई भी एक फैक्टर है, और ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उसका भी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इन्होंने जो है 40 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट में और 50 बेसिस पॉइंट जो है उन्होंने CRR को बढ़ा दिया है। अब इससे होगा क्या, CRR अगर आपने बढ़ा दिया है तो अब सब बैंकों को 1% जो है उससे ज्यादा मीन्स लगभग 87,000 करोड़ के ऊपर असर पड़ेगा। तो 87,000 करोड़ रुपए अब ज्यादा RBI के पास रहेगा, तो इससे जो है लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। दूसरा मीन्स आप उस वो लोन को जो आप बैंक जो है किसी कंज्यूमर को लोन के रूप में दे सकता था, अब वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगा और उसको वो लोन नहीं दे पाएगा। इससे क्या होगा, लोन कम हो जाएगा। लोन कम होगा तो लोगों की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा जो उन्होंने किया है, उन्होंने जो 40 बेसिस पॉइंट का जो बढ़ा दिया है रेपो रेट में, रेपो रेट में बढ़ाने से अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो मिलने वाला कर्ज है, कर्ज बैंकों के लिए थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो कर्ज महंगा होगा तो बैंक जो है पास कर देंगे अपने ग्राहकों के ऊपर। तो होम लोन है, कंज्यूमर जो अलग अलग टाइप के कार लोन है, पर्सनल लोन है, उनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ जाएगा, तो EMI वगैरह भी बढ़ जाएगी। तो इससे होगा क्या कि अगर आपने पैसा कमाया है और आपने जो है रेपो रेट को बढ़ा दिया है, आपने मीन्स पैसे को महंगा कर दिया है, आप लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के आपने पैसे को बेसिकली महंगा कर दिया है। अब होगा क्या, लोगों के पास पैसा, लोग जो है सोच विचार करेंगे, लोग तब जो है
जो है लोन की तरफ जाएंगे। इससे क्या होगा, लोग जब कम लोन लेंगे तो वो कम खर्च करेंगे, और कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो कहीं ना कहीं फिर हम जो है सप्लाई साइड को ठीक करके हम जो है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर रख सकते हैं। तो हम डिमांड को बेसिकली कम करना चाहते हैं, लोगों की कंजम्पशन पावर को हम कम करना चाहते हैं, और इसीलिए हम रेपो रेट को भी और सीआरआर को हम बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमारा कहीं से हम डिमांड कम कर दिए, अगर डिमांड जो है कम हो गई तो इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इतने छोटा चेंज करने से और केवल डिमांड के ऊपर आप फोकस करके आप इन्फ्लेशन पर आप पार नहीं पा सकते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वेंकटेश सर, आपके पास आता हूँ मैं। हर चीज़ वैसे ही महंगी थी, अब लोन भी महंगा हो गया, कैसे चलेगा? डिमांड पे कितना असर पड़ेगा इसका? कहते हैं कि भाई देखिए, बैंक शक्तिकांत दास का कहना है महंगाई कम हो जाएगी, चलिए वो तो लंबे दौर पे होगी, पर छोटे दौर में गाड़ी लेना और महंगा हो गया इन आम आदमी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं उत्कर्ष जी आप। ये जो एक सरप्राइज न्यूज आई है आज, ये एक तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत तगड़ा डेंट करेगी। सर कह रहे थे 0.5%, 0.4% का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी एक सेंटिमेंट्स को जब डेंट करती है, तो एक आदमी जिसके इच्छाएं पूरी करने के लिए जब वो परचेज का डिसीजन लेता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, चाहे घर लेना हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, जब तक सब कुछ घर पे खुशी का माहौल नहीं रहता, अच्छा माहौल नहीं रहता, तब तक आदमी इतने बड़े डिसीजंस लेता नहीं है। और जिसने भी आज तक नहीं सोचा होगा गाड़ी लेने का, लेकिन दिमाग बनाया होगा सिर्फ, उसको जब ये न्यूज मिलेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो रहा है, वो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको और डिले कर देता है कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले करते हैं, वेट करते हैं, जब कम होगा तब ले लेंगे। वैसे ही जैसे अतकर जी आप जानते हैं, आज की डेट में जो मार्केट में हालात है, टू व्हीलर ऑलरेडी इतनी लंबी डिग्रोथ पे चल रहा है। कुछ पिछले 2 साल देखें, कोविड की मार की वजह से, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज की वजह से, फ्यूल की वजह से, और अब एक और नई चीज आ गई है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऊपर जाने वाला है। तो ऑलरेडी वो 20, 25, 30% डिपेंड किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से डिग्रोथ पे चल रहा है। उस तबके का जो एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है, जो एंट्री लेवल गाड़ियां लेता है, वो ऑलरेडी अपनी एक सिचुएशन से गुजर रहा है जो बहुत अच्छी नहीं है। उस जैसे आम हिंदुस्तानी के लिए ये एक बड़ी मार है, और उसके डिसीजन को पूरे करने पे, गाड़ी खरीदने के या किसी भी बड़ी एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज खरीदने के लिए ये इफेक्ट करेगा, और धीरे धीरे डिमांड पे भी पक्का इफेक्ट आएगा। तो ऑलरेडी डिमांड कम है, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और डिमांड कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, बट कि इससे कोई भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आने वाला है। हम ऑलरेडी टू व्हीलर कस्टमर्स, एंट्री लेवल कार कस्टमर्स पे हम ऑलरेडी पूरी सिचुएशन में परेशान बैठे हुए हैं। ये एक और परेशानी हमारे कस्टमर्स के सामने आ गई। चलिए विवेक सर, आपके पास आता हूं मैं पहले कि क्या अंदाज़ा था इसका, या और इमरजेंसी एफएमसी मीट की, एमपीसी मीट की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये थोड़ा सा रिएक्शन था कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे बात है कि वहाँ पे दाम बढ़ सकते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्टेप ले लिया गया? देखिए उत्कर्ष जी, सच बोले तो हम लोग भी नहीं समझ रहे थे कि ऐसा डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी ठीक कहा जा रहा था, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश में अगर आप देखिए तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पर भी बोल चुका हूँ, जिस तरीके से हमारे देश में फ्री का कल्चर चल रहा है, तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो बर्डन है वो मिडिल क्लास के ऊपर जाता है। अब मिडिल क्लास के ऊपर आप कितना बर्डन रखेंगे? बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, उसके लिए आप जो है डिमांड को कम करना चाहते हैं, लेकिन आप डिमांड देखिए, आपने 40 बेसिस पॉइंट या फिर आपने 50 जो है बेसिस पॉइंट का आपने बढ़ा दिया है, इससे बहुत ज्यादा कोई डिमांड पे असर पड़ने वाला रही नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, इससे डिमांड पे लगभग ना के बराबर असर पड़ने वाला है। हाँ, एक बात जरूर होगी, और एक करोड़ों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है आज के दिन में। आपकी देखिए इनकम तो वही है, आपकी सैलरी जो थी वही है,
तो वेजेज में, सैलरीज में या फिर जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वही है। लेकिन आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली बैंकों के लिए महंगा होगा, तो बैंक जो है अपने कंज्यूमर के लिए महंगा कर देंगे। तो जहां आपको 8,000 रुपए आपका ईएमआई था, हो सकता है 8,300 या 400 रुपए आए, तो ये जो 300-400 रुपए बढ़ गया है, ये कहीं ना कहीं इसका उल्टा असर होगा। और आपके पास जो पैसा था जो कि आप प्रोडक्टिव चीजों में आप खरीद सकते थे, आपको यूज कर सकते थे, आप नहीं कर पाएंगे। तो एक जो डिसीजन लिया गया, मुझे मेरे ख्याल से अभी इसके लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लोग देश अभी भी जो है आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, लोगों के पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इनकम उनकी या तो कम हो गई है, करोड़ों लोगों की जो है जॉब्स नहीं है, या जॉब्स में उनको जो पैसा पहले मिलता था वो कम हो गया है, वो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। और उसके बाद अगर आप उनको लिक्विडिटी को कम करने के लिए आप जो है इंटरेस्ट रेट को भी आप बढ़ा देंगे, उनको ज्यादा महंगे दर पे आप लोन देंगे, तो एक तो देखो डिमांड इतना ज्यादा नहीं है, ये मैं मानता हूं कि कोविड-19 के बाद डिमांड में थोड़ा वृद्धि हुई है, लेकिन आप डिमांड को केवल कंट्रोल करके आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लिया गया है, मेरे ख्याल से इसका असर जो है पॉजिटिव कम और मुझे नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। लोग देखिए खरीद रहे हैं, लेकिन लोग क्यों खरीद रहे हैं? लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता है आप टमाटर खरीदेंगे, आपकी आवश्यकता है आप जो सब्जियां खरीदेंगे, तो ये तो मेरी आवश्यकता है। और आप इसके में अगर मैं घर लेना चाहता हूँ, मैं इंट्री लेवल कार लेना चाहता हूँ, मैं कुछ भी लेना चाहता हूँ, आप ईएमआई बढ़ा दोगे, इसका मार जो है दोहरा पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो बायर्स है, जो कंज्यूमर्स है, जो मिडिल क्लास है, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ने वाला है। और मैं बिल्कुल बोलता हूँ और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस डिसीजन के बाद जो आपने जो लिया है, केवल आप डिमांड को कंजप्शन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका जो है इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और इसको जो है वेंकटेश सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले हम मनीष दांगी की बात कर लेते हैं। उन्हें आरबीआई का जो रेट है, उन मनीष दांगी ने क्या कहा है उस बारे में। उनके अनुसार आरबीआई के इस फैसले का असर मार्केट पे ही नहीं, मार्केट पे तो असर दिख ही गया था, पर इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। उनकी बात को सुन लेते हैं, फिर आपका सामना वेंकटेश सर में। चारों तरफ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अपनी रेट्स को नॉर्मलाइज या टाइटन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आप बहुत देर तक इस चीज को ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में कुछ यूनिक होगा और हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो इवेंचुअली ये होना ही था। जैसा मेरा आपसे कई बार बात हुआ है पिछले कई महीनों से कि जिस फॉर्म में ये होगा, जिस तरह से आरबीआई रिले कर रहा था अपने मैसेज को, तो मेरा व्यू ये था कि हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ये शॉक के फॉर्म में ही होगा। और तो अब ऑफ कोर्स होना तो था ही ये, लेकिन क्योंकि वो शॉक के फॉर्म में हुआ है, ओके, तो उसकी वजह से उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट पहले ऑर्डर में मार्केट्स पे आता है, बट इकोनॉमी पे भी आता है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इस रेट हाइक को ऐसे देखना कि नहीं चलो 40 बेसिस पॉइंट शायद जून में होता था और अभी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव वजह ये रखना पड़ेगा कि अगले 2 सालों में अब हमको यहाँ से 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है अगर स्वैप मार्केट्स को देखें तो आप अपने रेपो रेट को, फंडिंग रेट को 7.5 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप 7.5 पे एक रात का पैसा अगर बोरो करने का रेट होगा आरबीआई से, तो फिर 10 साल का बॉन्ड इंडिया में कहाँ ट्रेड होगा। तो वही मैं आप लोगों को कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि शायद 8 के आसपास में 2022 में हम लोग देख पाएंगे। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10 साल का बॉन्ड ही 8% होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने पैसे को ब्लॉक करे, इक्विटी में अपने पैसे को ब्लॉक करे या कैश में रखे। तो इसी कंसिडरेशन के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। अब देखिए रेट्स काफी ऊपर आ गई हैं। आज 10 साल का एनुअलाइज यील्ड जो है वो 60 के आस तक पहुंच गया है। 30-40 बेसिस पॉइंट और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को आने लगेगा कि शायद वो बॉन्ड खरीद ले। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर आपके लोन रेट पे कितना असर पड़ेगा, आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा। चलिए मान लीजिए कि आपका जो लोन था वो 30 लाख का लोन था, और वो जो लोन था वो आपने करीब 20 साल के लिए लिया था। अब इसका कि पुरानी दर क्या थी? पुरानी दर थी 6.8%, आपकी ईएमआई होती थी 22,900 रुपये। अब ये उम्मीद करी जा रही है जो संभावित दरें होंगी बढ़ के वो करीब 7.2% हो जाएंगी।
और जब वो 7.2% हो जाएंगी तो आपकी EMI जो कि कितनी बढ़ेगी, 720 रुपये बढ़ेगी, तो आप 12 महीने में आपकी 8,640 के आसपास आपके होम लोन की EMI यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कार लोन की। कार लोन कितना महंगा हो सकता है? आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने कहा अब SUV खरीदेंगे, ये मज़ा नहीं है हैचबैक, तो आपने 10 लाख का लोन ले लिया, आपने कहा लंबा समय 7 साल के लिए दे देंगे। अब पुरानी दर क्या थी आपकी? 7.7% थी, आप EMI देते थे 15,437 रुपये की। अब नई दर में ये 8.2% हो जाएगी और अब आप EMI देंगे पर महीने की 15,685। कितनी बड़ी आपकी EMI? आपकी EMI कहने को तो 250 रुपये बड़ी, लेकिन जब आप 12 महीने की बात करते हैं तो 3,000 रुपये आपकी जेब से ज़्यादा जाएंगे। अब आखिरी में बात कर लेते हैं पर्सनल लोन की। भाई कोई ज़रूरत पड़ी आन पड़ी, आपने पर्सनल लोन ले लिया, कह रहे कि दे देंगे धीमे धीमे करके। तो पहले क्या करते थे आप? पहले आपकी दर थी 9.6%, तो 15,788 हुआ करती थी। चलिए वेंकटेश सर, अब आपसे बात कर लेते हैं। कार लोन बढ़ेगा, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है इसका डिमांड पे। आपने कहा कि देखिए फैक्टर्स कई सारे वैसे ही नेगेटिव थे, सप्लाई वैसे भी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि तुरंत इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू होगा? और कौन से सेगमेंट में आप ज़्यादा इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि आप तो ऑटो इंडस्ट्री में हर तरह की खबर रखते हैं, तो कहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा और जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? उत्कर्ष जी, ओवरऑल जो कार इंडस्ट्री का आज की डेट में हाल है, आपको पता है सेमीकंडक्टर की वजह से प्रोडक्शन के इश्यूज चल रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस सब की वजह से तो वेटिंग पीरियड्स बहुत है। तो रिटेल सेल में शायद इफेक्ट इसका तुरंत आपको नहीं दिखेगा, लेकिन डिमांड में जरूर दिखेगा। जो हमारी हर दिन नई इंक्वायरी आती है, जो कस्टमर का इंटरेस्ट होता है, उस पे हमें अब थोड़ा सा इसका इफेक्ट पक्का दिखने वाला है और कल ही सवेरे से दिखने वाला। जो पहले भी बताया, जो नॉर्मली एक एंट्री लेवल कार खरीदता है, जो कि नॉर्मली 7 लाख या 6 लाख से नीचे की कारें होती है, उनमें एक एक रुपए की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो महंगी कारें 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं, उनके लिए शायद 250 रुपए की EMI ऊपर नीचे बहुत फर्क नहीं पड़ती। लेकिन जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5-7 लाख की गाड़ी खरीदी है, जिसमें उन्होंने 50,000 या 1 लाख मार्जिन दिया है, 4 लाख 5 लाख के लोन पे अगर उसे 200 रुपए का भी फर्क पड़ता है तो मेजर फर्क पड़ता है। और जैसे मेरे को पैनलिस्ट बता ही चुके हैं कि मार्केट की सिचुएशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है। लोग जॉब्स की अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं। अभी भी रूरल में वो जो एक डर है कोविड का, वो अभी भी है। उनकी जो सेविंग्स इतने सालों की थी, वो कोविड की वजह से पिछले 2 जो मेजर वेव आई थी 1 और 2, उसमें खत्म हो चुकी है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं है। और 200 रुपए कहने को आसान लगता है, लेकिन जब कस्टमर एक डिसीजन लेने की सोच रहा होता है और ऐसी विषम स्थितियों में वो सोच रहा होता है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। तो ओवरऑल आपको इसमें कारों में मेजरली जो छोटी कारें हैं, जो ऑल्टो, वैगन आर या इस तरह की कारें हैं, इस पे जरूर इफेक्ट आएगा इसका। कस्टमर एक बार सोच में पड़ेगा कि EMI जो बड़ी है, क्या मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, आगे क्या सिचुएशन होगी। कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा रुक के दोबारा गाड़ी लेने का प्लान बनाए, कुछ लोग हो सकता है कि इसको ऐसा समझ के आगे प्लान ही अपना कैंसिल कर दे, क्योंकि जिस तरीके से बाकी चीजें रेट बढ़ रही है, जैसे आपने कहा पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो वो इफेक्ट एक और एडिशनल पड़ेगा। जी विवेक सर, आपके पास आऊँगा मैं। एक सवाल और एक डर जो सबको है कि क्योंकि ये तो इमरजेंसी मीटिंग में ही 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, तो जो आगे आने वाली होगी जो कि स्केड्यूल्ड है, वहाँ पर क्या होगा? क्या ये यहीं पर RBI रुक जाएगा या अभी आपको इस तरीके के हमको शोध और करने पड़ेंगे और आपको हमारे दर्शकों को और समझाना पड़ेगा कि हुआ क्या है, इसका असर क्या होगा? जी, अभी आपको उत्कर्ष से और शोध करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो जो कहते हैं ये तो शुरुआत है, आगे अभी और बढ़ने वाली है। तो आप देखेंगे, जैसे अब बोला भी जा रहा था, आपने एक बाइट सुनवाई हुई कि आगे जो है उन्होंने बोला कि लगभग जो है 7 तक जाएगी, जो वही 4.5 के आसपास है।
तो देखिए इतना तो मैं नहीं उम्मीद करता कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वरना फिर डिमांड के आप खत्म करने के चक्कर में आप पूरा का पूरा डिमांड ही आप तहस नहस कर देंगे जी सर। अगर इतना बढ़ गया। लेकिन हाँ, 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स आगे और जो है हो सकता है कि बढ़े, लेकिन इससे ज्यादा मुझे 5 साढ़े 5 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट जाने वाला है। जी विवेक सर, वेंकटेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। स्वदेश विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर लौटेंगे किसी विशेष खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलना। रेटिना स्वदेश में